Hello everyone, I am Divyapreet. Welcome to my YouTube channel. We are starting a revision series for CSAT 2026. So what we are going to do is we will take up topics which are highly probable for this CSAT based on the frequency in the past year papers. We are going to discuss the concept briefly and we will then solve some questions, mostly PYQs. So it is kind of like a basics to PYQs kind of series. So we are going to begin with the number system topics. The first one being divisibility rules. Then we are going to move on to remainders and zeros. So let's get right into it and see how we should be preparing divisibility topic for CSAT. So with respect to divisibility, the mistake sometimes people commit is they will do traditional division, but this is a long process and these questions do not require you to traditionally divide the given numbers. Rather, you would need to use some codes or rules which are also called the divisibility rules, which would take only a few seconds to solve these questions. So let us quickly discuss what rules there are and then we are going to move on to the questions. So first category of rules is the tail end codes, which basically depend on the last few digits of the number to judge the divisibility. So करना क्या है, जैसे let's say if you are given this number 749 and 824, this is your number, you want to check the divisibility for 2. For that the last digit has to be considered and अगर वो last digit even है, your number is divisible by 2. So in this particular number आप देखोगे last digit is 4, last digit is even. So an even number will be divisible by 2. That's why according to your rule of 2, ये जो आपका number है, it will be divisible by 2. So now if we look at other divisibility tests, we have rule of 4. Now rule of 4 में क्या होता है, you have to check the last 2 digits of that number. If the last 2 digits are divisible by 4, the entire number will be divisible by 4. तो इस particular question के अंदर last 2 digits are 24. We know 24 is divisible by 4 because 4 into 6 is 24. So that's why this entire number will be divisible by 24. Similarly, another rule that we have is rule of 8. Rule of 8 के अंदर you have to check the last 3 digits of that particular number. If they are divisible by 8, the entire number will be divisible by 8. So इस particular question का last 3 digits are 824. आप 824 को अगर divide करके देखोगे 8 से, you will get 1 and you will have 0, 3. So 103 से multiply करोगे तो you will get 824. That means 824 is divisible by 8. That means this entire number 749 824 is divisible by 8. Another rule is the rule of 5 and the rule of 10. So rule of 5 के अंदर last digit आपको देखना है अगर 0 है या 5 है. If the last digit is 0 or 5, it will be divisible by 5. अगर last digit 0 है, it will be divisible by 10. So these are basically the tail end codes, जहाँ पे आपको किसी भी नंबर का सिर्फ last digit या last few digits चेक करने होते हैं. Quickly you need to fix it in your brain कि 2 के लिए last digit है, 4 के लिए last 2 digits है, 8 के लिए last 3, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 10 के लिए 0 होना चाहिए. The next category of rules are basically the summation rules, जहाँ पे position से ज़्यादा value matter कर रही है उस particular number की. So for example 354 है and हमें check करना है if it is divisible by 3 या नहीं.
3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स इन डिजिट्स को सम करना है हमें. इफ वी आर गोइंग टू सम दीज डिजिट्स we have to do 3 plus 5 plus 4, which is actually equal to 9. Which is actually equal to 12. Now 12 is divisible by 3 because 3 into 4 gives us 12. So 12 is divisible by 3. That means this entire number 354 will be divisible by 3. So this was the first kind of summation rule. The other summation rule that we have is for 9. So the rule of 9 actually says कि if the sum of digits is divisible by 9, the number will be divisible by 9. तो इसके अंदर भी सेम करना है आपको. जो भी नंबर दिया होगा, let's say 4, 5, 6, 7, इसके सम करना है डिजिट्स को. 4 plus 5 plus 6 plus 7. This would come out to be 22. But 22 we know is not divisible by 9. That means this number is not divisible by 9. So these were like kind of the few easy divisibility rules. अगर आप इनको याद रखोगे, it will be very easy for you to solve questions which are directly based on these. Then there is the rule of 11. Rule of 11 थोड़ा सा like लंबा है, but it's again very easy. कुछ नहीं करना है. We have to calculate the sum of the odd positions and the sum of the even positions. तो odd position क्या होगी? यहाँ से अगर आप नंबर करना शुरू करोगे, so this is like the 0th position, 1st, 2nd and 3rd. Yeah, now don't think of it like that. You can think of it like this is the 1st, 2nd, 3rd and 4th, right? Digits. So first digit or third digit are the odd positions. That means odd positions का हमें sum करना है, which will be 9 plus 8. That means 17 will be your sum. Similarly, even positions 4 और 2 का हमें sum करना है, which will be 4 plus 2 is 6. इन दोनों सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, विच विल गिव अस 17 माइनस 6 इज इक्वल टू 11. अब अगर ये डिफरेंस जो आपका आया है, इफ दिस डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, दैट मीन्स योर नंबर इज डिविजिबल बाय 11. 11 of course is divisible by 11, so your entire number that was 9482 is divisible by 11. So I hope you understand this. कुछ भी नहीं करना है, odd positions का sum करना है, even positions का sum इसमें से subtract करना है, और जो भी आपके पास resultant number आएगा, ये number अगर divisible by 11 है, so your starting number जहाँ से आपने start किया था, that will be divisible by 11. Now there are certain numbers which are composite. For example, you have 6, 12 and 15. ऐसे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो यू विल चेक फॉर 2 एंड चेक फॉर 3. 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट डिजिट हैज़ टू बी इवन. तो हमें बस ये चेक करना है कि लास्ट डिजिट इवन हुए. 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? द सम ऑफ द नंबर digits have to be divisible, so sum has to be divisible by 3. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स योर नंबर इज डिविजिबल बाय 6. सिमिलरली फॉर 12 आप 3 और 4 का चेक करोगे. 4 का डिविजिबिलिटी वॉज लास्ट 2 डिजिट्स हैव टू बी डिविजिबल बाय 4. 15 के लिए यू विल चेक फॉर 3 एंड 5. 5 की डिविजिबिलिटी वॉज लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए. सो दीज आर द कंपोजिट numbers basically. So you have to be like these numbers have to be divisible by both of these, तभी वो finally 6 से भी divisible होंगे. So they have to pass both the gates.
Now there are the numbers 7 and 13. सबसे पहले 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं. लेट्स से यू हैव दिस पर्टिकुलर नंबर. व्हाट वी हैव टू डू इज, जो लास्ट डिजिट है आपका, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 2. सो लास्ट डिजिट इस पर्टिकुलर केस में 3 था, सो यू मल्टीप्लाई इट विद 2, यू गेट 6. नाउ जो भी आपका रिमेनिंग नंबर बचा है, इस केस में इट इज़ 34. यू हैव टू टेक दैट 34 and subtract वो वाला number that you have gotten after multiplying by 2, which is 6. So what you do is 34 minus 6, and if the resultant of this is divisible by 7, your entire number will be divisible by 7. So करना क्या है, last digit जो भी आपका है उसको multiply करना है 2 से और remaining number में से subtract करना है. रिमेनिंग नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इफ़ योर रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाय 7, तो आपका एंटायर नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 7. सिमिलरली जो 13 का रूल है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दिस. इसके अंदर यू हैव टू ऐड 4 टू द लास्ट डिजिट. सो करना क्या है, जो भी लास्ट डिजिट है उसके अंदर 4 मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 4 विल गिव यू 36. देन जो भी आपका रिमेनिंग नंबर था, इस केस में 16 है, उसके अंदर वो मल्टीप्लाइड 4 वाला नंबर ऐड कर दो. दिस टाइम इट इज़ ऐड. रिमेंबर, यू आर एडिंग द नंबर्स. whatever you get, if that particular thing is divisible by 13, your entire number will be divisible by 13. So 52 is divisible by 13, that's why 169 is divisible by 13. So 7 और 13 के rules just like 11 थोड़े से extra steps है, but again it is very easy. यहाँ पे जो numbers थे they were actually such जिसके अंदर 3 digits ही थे, तो आप easily कर पाए. but अगर आपके number में ज़्यादा digits है, for example आपका number इतनी digits का है, so you start from द राइट साइड ऐसे ही एंड यू कीप गोइंग फर्दर. तो पहले आपने 7 से किया, फिर आपका कुछ नंबर आया होगा. अगर इस नंबर की भी डिविजिबिलिटी चेक करना आसान नहीं है, यू अगेन डू द सेम टेस्ट एंड देन यू कीप गोइंग फर्दर लाइक दैट. सो दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7 and 11. So up until now we have discussed divisibility 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का तो 2 into 7 you can do and 15 का भी we have discussed. So essentially 2 से लेके 15 तक की सारी divisibility we have discussed. You should remember all of these divisibility rules. It will make solving questions a lot more easier for you. Okay. Now let us discuss one question. This is 2013 का question. So पुराना question है, but yeah, it clears your concepts very well. So which of the following numbers is divisible by both 4 and 6? So आपको इन numbers की divisibility check करनी है 4 और 6 से. So one way to go about it is कि आप सारे options को देख लो कौन से number ऐसे हैं जो 4 और 6 दोनों से divide हो रहे हैं using the divisibility rule. So divisibility rule को use करते हुए देखोगे तो 120 के लिए 4 से divisible में last 2 digit check करोगे. 20 is divisible by 4. Why? Because 5 से चले जाएगा ये. So that means 120 is divisible by 4. 6 की divisibility के लिए क्या था? 2 and 3 दोनों से divisible होना चाहिए. 120 divisible by 2 है क्योंकि लास्ट में even है. 3 की divisibility के लिए मेरे को sum करने हैं digits 1 plus 2 plus 0, which is what? 3. And of course 3 is divisible by 3. That means 120 is divisible by 3. That means 120 is divisible by 6. तो 6 और 4 दोनों से divisible हो गया, तो A तो आपका valid है ही. दूसरा तरीका इस चीज़ को करने का है using the LCM method, which is this. तो आप क्या करोगे? LCM निकालोगे 4 और 6 का. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका आएगा 12. लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? 4 के फैक्टर्स लिखो 2 into 2, 6 के फैक्टर्स लिखो
2 इंटू 3। तो जितने भी मैक्सिमम फैक्टर्स की पावर है उनको आपको लेना है। सो LCM विल बी 2 का स्क्वायर इंटू 3 की a की पावर तो 3, दैट गिव्स अस 4 इंटू 3 विच इज़ 12। तो LCM आ गया 12। नाउ यू जस्ट हैव टू चेक कि कौन से नंबर्स 12 से डिविजिबल है, विच इज़ एक तो आपका 120 और 180। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोथ 120 एंड 180 सेटिस्फाई द रूल ऑफ 12, सो आपका आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो ईदर वे आप कर सकते थे। आई हैव टोल्ड यू बोथ द मेथड्स, यू कैन डू वट एवर सूट्स यू बेटर। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019। द क्वेश्चन इज एन 8-digit नंबर, आपको एक नंबर दिया है, इट लीव्स द रिमाइंडर 0 when divided by 3, how many values of b are possible। अब रिमाइंडर 0 लिखने का मतलब है कि इट इज़ एंटायरली डिविजिबल बाय 3। तो जो आपका ये नंबर है 4 5 5 2 7 4 6 b, this is entirely divisible by 3. So I want you to take a couple of minutes, pause this video, try to solve it and then move forward for the solution. आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बता दूंगी तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। सो ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। आई विल गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो हमें बोला गया है इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सम ऑफ डिजिट्स हैव टू बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स करो, क्या है हमारे पास डिजिट्स? 4 + 5 4 + 2 + 5। लेट मी जस्ट सो ये है हमारे पास डिजिट्स आपकी, इनको ऐड करना है जो हमें, विच इज़ 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 विच विल गिव यू 30। सो आपका टोटल सम हो जाएगा 30 + b। दिस सम हैज़ टू बी डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय 3। तो इसको डिविजिबल बाय 3 करने के लिए now 32 is already divisible by 3, right? 30 is already divisible by 3, ये 10 से जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो b है ये भी divisible by 3 हो। और ये divisible by 3 कैसे होगा? या तो b 0 हो जाए, 3, 6 या 9, बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 3 हुए, बट ऑब्वियसली सिंगल डिजिट है तो हम 9 पे ही रुक रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू 12, सिंगल डिजिट चाहिए हमें। तो 4 ऐसे डिजिट्स पॉसिबल हैं b के लिए, तो ऑब्वियसली देन योर आंसर इज 4 वैल्यूज, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। क्या पूछा था? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल। तो योर आंसर इज C, 4 वैल्यूज। सो ना आई होप आपको समझ में आ रहा है हाउ यू विल अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल्स टू दीज क्वेश्चंस। Now look at this question from 2020. 5-digit prime numbers. How many 5-digit prime numbers can be obtained using all the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition? Without repetition का मतलब है कि एक डिजिट आप एक बार ही यूज़ करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 को 2 बार यूज़ कर लिया या समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ नॉट what we want. So we have these 5 digits, we want to understand कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो हम क्रिएट करेंगे 5 डिजिट्स के, जो प्राइम नंबर्स होंगे। अच्छा, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी आई होप यू नो, प्राइम नंबर्स आर सच नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। तो कोई भी और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर। तो हमें बताना है कैन वी जनरेट सच प्राइम नंबर्स एंड हाउ मेनी कैन वी जनरेट फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स। अब ऐसे तो यू कांट रियली थिंक ऑफ व्हाट टू डू। मेरे को पता है मेरे डिविजिबिलिटी रूल्स में या तो लास्ट डिजिट्स चेक करने हैं या सम चेक करना है, समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी ट्राई बाय एडिंग दीज डिजिट्स।
तो इन डिजिट्स का सम करके देखते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है? ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 3 6, 12 10 और फिर 15. 15 is what the sum is. 15 is divisible by 3, right? क्यों? क्योंकि 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है. That means the sum of digits is divisible by 3. यानी कि हमें पता है रूल ऑफ 3 के हिसाब से नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. तो अगर कोई भी नंबर आप जनरेट करते हो इन डिजिट से, वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 3 से. तो क्या वो प्राइम हो सकता है? Such a number can never be prime. That means you cannot find any such numbers which are prime numbers. Your answer is 0. I hope ये question आपको समझ में आया हो. It was a good question, but if you know the divisibility rules well, it's very easy. Free marks. So कुछ नहीं किया हमने, digit sum किया, digit sum देखा, that came out to be divisible by 3. अगर ये divisible by 3 है यानी all permutations of those digits would be divisible by 3. Prime number नहीं बन सकता, prime count will be 0. So ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन वापस नहीं आया है, बट इट कैन कम. इट इज़ अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. ओके, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी हैज़ आस्क्ड इज दिस. इन द ईयर 2023 पूछा गया ये. फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, द 6-digit नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाय व्हाट? ये पूछा है. ऑप्शंस में हमें दिख रहा है 7, 11, 13 है. अब देखो हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं 7, 11, 13 के, वो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें डिजिट्स पता हो. क्योंकि 11 के लिए आपको ऑड पोजीशंस का सम करना है, इवन में से सबट्रैक्ट करना है, एंड देयर इज एन एंटायर प्रोसीजर दैट गोज ऑन, बट दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू नो द डिजिट्स. हियर यू डू नॉट नो द डिजिट्स, सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन. This is the number given to you, XYZ. Let me call this number, this is the number given to me. Let me call this XYZ to be N. तो जो ये नंबर हमें दिया है, can I write this number as XYZ plus 1000 times XYZ? Can I do that? Why? Because आप ये सोचो 1000 times XYZ कितना होता है? 1000 times XYZ होता है 1000 times XYZ अगर आपको लिखना है तो you will write it as XYZ और उसके पीछे 3 zeros. और इसमें अगर मेरे को ऐड करना है XYZ, will I not get what I have? XYZ और XYZ. क्योंकि 0 में Z ऐड करोगे Z, 0 में Y ऐड करोगे Y, 0 में X ऐड करोगे X. तो यही तो वो नंबर है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो आई कैन राइट दिस एज XYZ plus 1000 times XYZ. बट XYZ को तो मैंने n कहा था. सो दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर मी इज नथिंग बट n plus 1000 times n. गिवन नंबर जो भी है हमारा, ये क्या है? 1 plus 1000 into n. n को कॉमन निकाला, which is nothing but 1001 times n. अब n तो कोई भी रैंडम नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन 100 एक ऐसा डिजिट नंबर दिया हुआ है मुझे जहाँ से मैं डिविजिबिलिटी चेक कर सकती हूँ. सो 100 के फैक्टर्स देखें अगर एक बारी क्या होते हैं. अगर आप 100 को फैक्टराइज करोगे, लेट मी स्टार्ट विथ 7, तो यू विल एक्चुअली सी कि इसके जो फैक्टर्स हैं दे आर 7,
11 and 13. तो क्योंकि 100 के फैक्टर्स ही 7, 11 और 13 है, दैट मीन्स this particular number that was given in the question is divisible by all of these 7, 11 and 13. So I hope इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था ये आपको समझ में आया है. यहाँ पे हमने डायरेक्ट रूल कुछ नहीं अप्लाई किया है. वी हैव जस्ट डन सम मैनिपुलेशन फॉर दिस XYZ दैट वाज गिवन टू अस. वी कंसिडर्ड इट टू बी n एंड जब हमने इसको थोड़ा अच्छे से लिख के देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो n प्लस 1000 टाइम्स n है जो गिवन नंबर है हमारा. सो दैट्स वाई 1001 के फैक्टर्स होते हैं 7, 11, 13. दैट्स वाई योर आंसर बिकम्स ऑल. मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन देखो. हाउ मेनी 3-digit natural numbers without repetition are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? This actually is a PNC का question, but ये divisibility rule यहाँ पे apply हो रहा है because of this divisible by 5 वाली चीज़. तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड इट ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी आप दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस में भी यूज़ करोगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट देन. सो टेक अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व इट. आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड इट इन माई CSAT स्मार्ट रूल्स वाली सीरीज़. सो उस स्मार्ट रूल के हिसाब से PNC के अंदर जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हो क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट नो विच कंडीशन शुड बी अप्लाइड फर्स्ट. सो whatever the strongest restriction has to be applied first. Why? Because the strongest restriction actually fixes your position. So हमें जज करना है strongest restriction कौन सा है. पहले देखो कितने restrictions है. एक तो 3 digit होना चाहिए without repetition, ऑड होने चाहिए सारे डिजिट्स और डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए. अब ये देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 वी नो क्या होती है. लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए. बट हमें कहा है कि ऑड ही डिजिट्स अलाउड है. दैट मीन्स 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इवन है. तो हमारा ये फिक्स हो गया है कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही होगी. तो एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जहाँ पे लास्ट डिजिट हमें पता है 5 होगी. So this place obviously can only be filled in one way. अब देखते हैं बचे हुए डिजिट्स कैसे आ सकते हैं. ऑड डिजिट्स चाहिए. ऑड क्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9. 5 तो हमने यूज़ कर लिया, इसको हटाओ. बचे कितने? 4 डिजिट्स. सो 1, 3, 7 और 9. दिस प्लेस कैन बी टेकन अप इन 4 ways. 1, 3, 7, 9 में से कुछ भी आ जाए. लेट्स से यहाँ पे आ गया 3. अब 3 यहाँ पे आ गया है तो 3 वापस नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है. बचे कितने? 3, 1, 7 और 9. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways. सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे? 4 × 3 × 1. दैट इज 12. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. तो इफ़ यू सी इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. बस आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सी कंडीशन पहले अप्लाई करनी है. और अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता 5 का तो ये क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. लास्ट में 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये इवन है. ऑड ही चाहिए डिजिट्स. सो दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. 2023 का सवाल है. Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? Take a few minutes, solve it, and you can pause the video and solve it. So, नंबर दिया हुआ है आपको 7x plus 96. ये नंबर डिविजिबल बाय x है.
हमें बताना है x की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो 7x प्लस 96 डिविजिबल बाई x है, तो ये तो 7 प्लस 96 बाई x हो गया। ये तो इंटीजर आ ही गया है, हम बस ये चाहते हैं कि 96 डिवाइड बाई x भी एक इंटीजर आ जाए, तभी ये पूरा इंटीजर बन जाएगा और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x को कोई ना कोई फैक्टर होना पड़ेगा ऑफ व्हाट, 96। तो आप ये देख लो कि 96 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। तो 96 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो चलो क्विकली लेट्स डू दैट। 2, 4 और ये 8, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। सो कैसे फैक्टराइज हो रहा है ये? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने टूज़ हैं? 5। सो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। नाउ एक तरीका होता है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो अब क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 2 भी फैक्टर है, लेकिन 48 भी फैक्टर है, 24 भी फैक्टर है, 12, 6, 3 और ये सारे इंडिविजुअली भी फैक्टर्स हैं। तो आप कैसे काउंट करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू विल जस्ट मल्टीप्लाई पहले प्राइम फैक्टर की पावर, इसको P1 लिख लेते हैं, P1 प्लस 1 इंटू दूसरे प्राइम फैक्टर की पावर P2 प्लस 1। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, विच इज़ 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 6 इंटू 2 दैट इज़ 12. So you will have total 12 factors and that's why your answer is 12. Okay, this might have gotten hidden, just I'll repeat over here. So your factors are what? 2 power 5 into 3 power 1. Total number of divisors या number of factors जो हैं दे आर पहले प्राइम फैक्टर की पावर प्लस 1 इंटू दूसरे प्राइम फैक्टर की पावर प्लस 1। तो पहला तो 5 है, 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 1 है, 1 प्लस 1, सो दैट इज़ 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। सो हमें बस ये चाहिए था 96 के कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं एंड दैट इज़ 12। ओके, I have by chance just put the Hindi version of the question. Anyway, I'll still tell you what the question is saying. 2025 का ये question है। आपको ये नंबर दिया है एक लंबा सा मल्टीप्लिकेशन होते हुए और पूछा है कि 35 की पावर कौन सी मैक्सिमम है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हमें ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू 1000 इंटू 2401 इंटू 77777, ये पूरे नंबर को 35 की कितनी पावर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये n वी वांट टू फाइंड आउट। सो अगेन टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट and then watch the solution further. पहले तो 35 को देखो, 35 क्या है? 35 is nothing but 7 into 5. तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि 7 और 35 की कितनी पावर्स अवेलेबल हैं इस लंबे से एक्सप्रेशन के अंदर। ये चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले तो देखते हैं 7 के अंदर ऑब्वियसली 7 पावर 1 है। 343 क्या है? 7 का क्यूब। 343 is 7 का क्यूब, राइट? या सो 385 कितना है? अगेन अब लास्ट में आप देख रहे हो 5 है, तो 385 के अंदर 5 का फैक्टर आएगा। तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे क्विकली तो ये 7 हो गया और 7 11 और 11 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11। सिमिलरली 1000 क्या होगा?
1000 के factors are what? You can either quickly just do it on the side. 1000 के factors 2, 500, 500 और 520, 5, 4 और 2 का स्क्वायर. So you get 2 का क्यूब into 5 का क्यूब. That is what you have. Again 2401 को फैक्टराइज करोगे तो 2401 के फैक्टर्स जो होंगे, आई डू नॉट थिंक 7 और 5 इसके फैक्टर्स. 5 तो आएगा ही नहीं ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं है, और 7 भी यहाँ से नहीं आता दिख रहा. फिर 7, 7, 7, 7, 7. दिस इज़ व्हाट 7 इंटू 1, 1, 1, 1, 1. तो यहाँ से भी 7 का एक पावर आ गया है, राइट. एक बार 2401 का आई विल क्विकली जस्ट डू एंड सी. आई डू नॉट वांट की. Okay, yeah, there is 1 7 का factor. Let's see. But it is not exactly 373 तो is prime only. So I think this will be your factor and you will get 1 power of 7. Yes. तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आए हैं उसके अंदर 7 पावर 1, 7 क्यूब, 7 और 7 और 7. सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर यू विल हैव फाइनली हाउ मेनी 7 की पावर्स इन दैट नंबर. यू विल हैव 7 पावर 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. एंड 5 की कितनी पावर्स होंगी इस नंबर के अंदर? लेट्स कैलकुलेट. 5 पावर 1, 5 क्यूब, एंड दैट इज अबाउट इट. सो 1 प्लस 3. सो व्हाट वी हैव इज 7 की पावर आ जाएंगी 7 और 5 की पावर है 4. तो आउट ऑफ दीज वी सी कि 35 तो हमारा तभी क्रिएट होगा जब 7 और 5 दोनों हो. तो आप ऐसे सोच लो कि ये है 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 पावर 4, which is nothing but 30, which is nothing but 35 power 4. तो this can only be divisible by 35 की power 4. Your answer becomes option B. तो क्विकली टू रिकैप हमने क्या किया. वी सॉ कि 35 जो आपका नंबर है इसको फैक्टराइज करा तो पता चला 7 और 5 चाहिए हमें बस ये देखना था क्या पावर्स क्रिएट हो रही है 7 और 5 की इन दिस पर्टिकुलर नंबर जो हमें दिया हुआ है. तो उसके लिए सारे नंबर्स को फैक्टराइज करके देख लिया 7 की पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर कितनी आ रही है. इनमें से जो लीस्ट पावर होएगी दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि तभी वो नंबर 35 क्रिएट हो पाएगा विच इज़ 7 इंटू 5. दैट्स वाई योर आंसर इज़ 4 एंड दैट्स हाउ यू वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. Again, not a very difficult question. If you know the basics of maths, right, if you know factorization, you know divisibility, your question easily solvable tha. Okay, so this was our discussion with respect to the divisibility rules. In the next video, we will talk about remainders. Until then, keep learning, keep believing. All the best. I'll see you in the next one.